Hello students, in this video we will start off with ethers. Okay, now up till now we have covered alcohols, we have looked at physical and chemical properties of alcohols, phenols. Okay, now we will start off with ethers. अब ethers क्या होता है? Ethers are basically the compounds in which oxygen atom is attached to two alkyl groups. Okay, so when oxygen atom is attached to two alkyl groups, इसको कहा जाता है ether. Now ये जो दो alkyl groups, they can be either same or they can be different. If the two alkyl groups are same, they become your symmetrical ether, and if the two alkyl groups are different, they become your unsymmetrical ether. Okay, अगर जो आपके दो alkyl groups different है तो इनको हम लोग कहते हैं unsymmetrical ether. Okay, अब हम now ethers are also called as functional isomers of alcohol. Isomers क्या होता है? Isomers are basically the compounds which have got same molecular formula but different structure. So when I say isomers, ethers are isomers of alcohol, इसका मतलब ether का and alcohol का molecular formula same है, but इन दोनों के अंदर जो functional group है that is different. Okay, now let's take an example. Let's say you have this compound CH3OCH3. ये symmetrical ether हुआ, correct? Now इसका formula क्या है? C2H6O. Now let's compare it with this compound, that is ethanol, CH3CH2OH. इसका भी formula क्या है? C2H6O. You can see that इन दोनों का जो molecular formula है वो same है, so ये दोनों isomers हो गए, बट दोनों के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप्स है वो अलग है. यहाँ पे OH ग्रुप है, सो दिस इज योर अल्कोहल ग्रुप, एंड यहाँ पे बस ऑक्सीजन है. ये इस तरह का कंपाउंड है, ऑक्सीजन इज अटैच टू टू अल्काइल ग्रुप्स, तो ये ईथर हुआ. तो इन दोनों के फंक्शनल ग्रुप्स अलग है, तो इसलिए वी से दैट दे हैव गॉट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, इसलिए इनको कहा जाता है फंक्शनल आइसोमर्स. अब इन दोनों का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? यू कैन सी दैट C2H6O C2H6O, तो जनरल फॉर्मूला विल बी CnH2n+2O, एंड दोनों के लिए सेम ही होगा क्योंकि हम लोग कह ही रहे हैं ना, अल्कोहल्स एंड ईथर्स आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. सो दैट इज व्हाई अल्कोहल्स एंड ईथर्स, ओके, दिस इज देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ओके, नाउ वी विल लुक एट समथिंग कॉल्ड एज मेटामर्स. Now metamers क्या होता है? Metamers are the compounds which have got same functional group. This is very very important. They have got same functional group, but इनके बीच में जो alkyl groups होते हैं, those alkyl groups are different. Alkyl groups जो है, those are not same. Okay. Now let me give you an example. Let's say we start off with this example: CH3, CH2O, CH2, CH3. ओके, नाउ हाउ डू यू नेम दिस? हम लोग IUPAC नहीं, हम लोग पहले कॉमन नेमिंग सिस्टम देखते हैं. नाउ आप इसका कॉमन नेम कैसे लिखोगे? आपको बस जो दो अल्काइल ग्रुप्स है आपको उनको स्पेसिफाई करना है. सो ये साइड पे दिस इज द अल्काइल ग्रुप दैट यू हैव, दिस इज इथाइल ग्रुप. ओके, एंड सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड पे भी व्हाट यू हैव इज CH2CH3. So this is also ethyl group. So जो दो अल्काइल ग्रुप्स है वो इथाइल है, तो इस कंपाउंड को कहा जाता है डाई इथाइल ईथर. ओके, नाउ इफ यू कंपेयर दिस विथ, लेट मी गिव यू अनदर कंपाउंड OCH3 एंड यू हैव CH2 CH2 CH3. नाउ ये जो ऊपर वाला कंपाउंड है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10O, एंड इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप देखोगे तो इट विल बी सेम, C4H10O. दीज आर योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज. ओके, नाउ दिस इज मीथाइल. दिस इज propyl. Okay, now I'll say because इन दोनों के molecular formula same है, ये दोनों isomers हो गए. These two are isomers of each other. Okay, let's write down their names. So
अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम लोग फॉलो करते हैं. सो दिस इज मीथाइल प्रोपाइल ether. Now if you see in this case what has happened is though both the compounds are ether itself, बट फर्क कहाँ पे आ रहा है? फर्क ये अल्काइल ग्रुप्स में आ रहा है ना. यहाँ पे दोनों इथाइल ग्रुप्स थे, यहाँ पे एक मीथाइल है एक प्रोपाइल है. तो these two are isomers of each other, they have got same functional groups, both of them are ethers. What is different is only the alkyl groups are different. So because alkyl groups are different, these two become metamers of each other. अच्छा, यहां पे और एक मेटामर पॉसिबल है. और एक मेटामर किस तरह से बनेगा? OCH3 CH CH3 CH3. ओके, ये तो आपका मीथाइल ग्रुप हुआ, बट दिस इज डिफरेंट ना. यहां पे 3 कार्बन एटम्स है, बट बीच वाला कार्बन एटम ऑक्सीजन को अटैच्ड है. सो दिस इज योर आइसोप्रोपाइल. ओके, सो ये मीथाइल हुआ, ये हुआ आपका आइसोप्रोपाइल. सो द नेम ऑफ द कंपाउंड वुड बी, आई पहले आता है एम से, सो दिस विल बी आइसोप्रोपाइल methyl ether. यू कैन सी दैट ये भी ईथर है, तो फंक्शनल ग्रुप सेम है, बस आपके जो अल्काइल ग्रुप्स है वो डिफरेंट है. यहाँ पे प्रोपाइल है और यहाँ पे आइसोप्रोपाइल है, राइट. सो इवन दिस बिकम्स, मतलब ये तीनों मेटामर्स हो गए, तीनों मेटामर्स हो गए. ओके, नाउ इफ यू कंपेयर इट विद दिस, दैट इज CH3 CH2 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 OH. इसका भी फॉर्मूला होता है C4H10O, बट इसका नेम क्या होगा? दिस इज ब्यूटेनॉल. नाउ यू कैन सी दैट दिस इज नॉट ईथर. ये तीनों ईथर्स थे, बट ये ईथर नहीं है, दिस इज योर अल्कोहल. एंड बिकॉज दिस इज योर अल्कोहल, इन दिस केस योर फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफरेंट. फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफरेंट, तो आप इसको मेटामर नहीं बोलोगे. दिस इज नॉट अ मेटामर, नॉट अ मेटामर ऑफ ईथर. इज दिस फाइन? ये ईथर का मेटामर है ही नहीं. सो यहां पे द बेसिक्स ऑफ ईथर की, बेसिकली ईथर का स्ट्रक्चर क्या होता है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है. 2 टाइप के ईथर्स होते हैं, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर. सिमेट्रिकल ईथर को बहुत बार सिंपल ईथर्स कहा जाता है, एंड अनसिमेट्रिकल ईथर को बहुत बार मिक्स्ड ईथर्स कहा जाता है. ओके, फिर हम लोगों ने ये देखा कि ईथर्स एंड अल्कोहल्स आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. दोनों का जनरल फॉर्मूला ये होता है. ईथर्स के अंदर हमें मेटामरिज्म दिखता है. मेटामर्स क्या होता है? दे हैव गॉट सेम फंक्शनल ग्रुप, जस्ट दैट द अल्काइल ग्रुप्स आर डिफरेंट ऑन द 2 साइड्स. ओके, फाइन. फिर हम लोगों ने ये कहा कि अल्कोहल्स आर नॉट मेटामर्स ऑफ ईथर, क्योंकि अल्कोहल्स हैव गॉट अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप. Now what we will do is we will start off with IUPAC naming. आपको कॉमन नेमिंग कैसे करनी है वो तो आपको समझ में आ गया है. अब IUPAC नेमिंग स्टार्ट करते हैं. ओके, नाउ ईथर्स जो होते हैं, ईथर्स आर हाईली अनरिएक्टिव, बहुत ही अनरिएक्टिव कंपाउंड्स होता है. तो ईथर्स जो होता है ना, ईथर्स आर वेरी सिमिलर टू अल्केन्स इन दैट रिस्पेक्ट, क्योंकि अल्केन्स भी बहुत अनरिएक्टिव होता है. ओके, सो IUPAC नेमिंग से अब स्टार्ट करते हैं. पहला एग्जांपल ये है CH3O CH2 CH3. इसका कॉमन नेम होगा इथाइल मीथाइल ईथर, बट हमें कॉमन नेम नहीं चाहिए, हमें IUPAC नेम चाहिए. मैं आपको ये समझा रहा था कि ईथर्स अल्केन्स की तरह अनरिएक्टिव ही होता है. तो यहाँ पे IUPAC नेमिंग कैसे दिखी जाती है पता है? पहले तो 2 अल्काइल ग्रुप्स में से आप बड़ा वाला अल्काइल ग्रुप चूज करते हो, द वन विच हैज गॉट अ लॉन्गर चेन. नाउ लेफ्ट हैंड साइड पे यू हैव ओनली 1 कार्बन एटम, राइट हैंड साइड पे यू हैव 2 कार्बन एटम्स. सो दिस बिकम्स योर लॉन्गर चेन. जो भी लॉन्गर चेन होती है वो आपकी मेन चेन हो जाएगी. सो दिस बिकम्स योर मेन चेन. नंबरिंग उस कार्बन से वहां से स्टार्ट होगी जहां से ऑक्सीजन पास में आ रहा हो.
तो ये एंड से ऑक्सीजन पास में आ रहा है, सो दिस बिकम्स नंबर 1, दिस बिकम्स नंबर 2. ओके, नाउ आप ना ये पूरा जो चीज है इसको आप ब्रांच की तरह ट्रीट करोगे. दिस इज ट्रीटेड एज अ ब्रांच. नाउ इस ब्रांच का नाम क्या होता है? ये हमेशा अल्कऑक्सी जैसे लिखा जाता है. अल्क मतलब जो भी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है. यहां पे मीथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो दिस इज रिटन एज मीथॉक्सी. सो द नेम ऑफ द कंपाउंड इज 1 फर्स्ट कार्बन एटम पे ये मीथॉक्सी है, सो 1 मीथॉक्सी. एंड 2 कार्बन एटम्स है तो आप अल्केन की तरह लिखोगे, सो इथेन. सो ईथर्स आर ऑलवेज रिटन इन टर्म्स ऑफ अल्केन्स. जो भी अल्केन है, जो भी पेरेंट अल्केन है उसको एज इट इज लिखा जाएगा. सो 2 कार्बन एटम्स है तो यहां पे इथेन लिखा जाएगा. एंड ये इसको ब्रांच की तरह ट्रीट करोगे, एंड ये ब्रांच मीथॉक्सी है. एंड मीथॉक्सी फर्स्ट कार्बन एटम पे अटैच्ड है तो 1 मीथॉक्सी इथेन. ओके, नाउ लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल. लेट्स से यू हैव CH3 CH2O CH2 CH3. ना यहां पे दोनों अल्काइल ग्रुप्स की लेंथ सेम है, तो आप किसी को भी अपना मेन ग्रुप मान सकते हो, या मेन चेन आप किसी को भी मान सकते हो. तो मैं इसको अपनी मेन चेन मानता हूं. सो दिस इज 1, दिस इज 2. तो आपका ये जो होगा दिस वुड बिकम लाइक अ ब्रांच. ये ब्रांच का नाम क्या है? इथाइल एंड ऑक्सीजन, तो ये इथॉक्सी हो गया. सो दिस इज 1 इथॉक्सी इथेन. ठीक है, दिस इज योर इथॉक्सी. सो 1 इथॉक्सी इथेन. Now let's consider one more example. Let's say we have this O CH2 CH3 CH CH3 CH3. अब आप दोनों साइड पे कंपेयर करो तो दिस इज योर लॉन्गर चेन ना. यहां पे इस चेन में 3 कार्बन एटम्स है, एंड यहां पे इस चेन में 2 कार्बन एटम्स है. सी प्लीज रिमेंबर दिस. आप बस ये चेन यहां से हमेशा काउंट नहीं करोगे, आप लॉन्गेस्ट चेन कंटिन्यूअस कार्बन की चेन आप देखोगे. सो यहां पे 1 2 3, योर लॉन्गेस्ट चेन इज 3 कार्बन एटम्स. ओके, एंड राइट हैंड साइड पे इट इज 2 कार्बन एटम्स. सो दैट इज वाई दिस इज स्मॉलर. जो भी स्मॉल होता है उसको ब्रांच की तरह ट्रीट किया जाता है. तो ये जो ब्रांच होगी इस ब्रांच को कहा जाएगा इथॉक्सी. ओके, दिस बिकम्स इथॉक्सी. अब नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे? आप यहां से स्टार्ट करते हो तो भी 1 2 सेकेंड कार्बन एटम पे ये ब्रांच आती है. एंड आप नंबरिंग यहां से स्टार्ट करते हो 1 2 तो भी सेकेंड कार्बन एटम पे ही ब्रांच आती है. तो कोई भी साइड से नंबरिंग स्टार्ट करो तो 1 2 3. सो दिस बिकम्स 2 ethoxy, and because you have 3 carbon atoms this becomes propane. So 2 ethoxy propane. I hope this is clear to you. ठीक है, चाहिए तो और एक एग्जांपल हम लोग करते हैं. ओके, लेट्स से यू हैव दिस कंपाउंड. ऐसा मान लो आपका कंपाउंड है. दिस इज द टाइप ऑफ कंपाउंड दैट यू हैव. ओके, नाउ इन दिस केस आपको लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करनी है. अब लॉन्गेस्ट चेन आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ओके, राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड पे जो ग्रुप है वो ऑब्वियसली छोटा ग्रुप है, तो लॉन्गेस्ट चेन तो ये हो नहीं सकती. लॉन्गेस्ट चेन आपकी इसी साइड पे होगी, तो इसको हम लोग ब्रांच की तरह ट्रीट करेंगे. सो दिस बिकम्स मीथॉक्सी. ओके, नाउ आप यहां पे और एक ब्रांच है दैट इज मीथाइल. मीथाइल. ओके, ना आप यहां से नंबरिंग स्टार्ट करो. आपकी लॉन्गेस्ट चेन इज दिस. आप यहां से नंबरिंग स्टार्ट करो तो भी 1 2 3 थर्ड कार्बन एटम पे दोनों ब्रांचेस आ रहे हैं. आप यहां से नंबरिंग स्टार्ट करो तो भी थर्ड कार्बन एटम पे ही दोनों ब्रांचेस आ रहे हैं. सो लेट मी राइट दिस नाउ. 1 2 3
4 5. ओके, सो दिस इज 3 पे। अच्छा, पहले क्या लिखा जाएगा? आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करोगे। METH, METH, यहां तक तो दोनों सेम है, बट फिर यहाँ पे O आ रहा है और फिर यहाँ पे Y आ रहा है। O पहले आता है ना, तो आप इसको पहले लिखोगे। सो दिस विल बी 3-methoxy, ओके, डैश 3-methyl एंड 5 कार्बन एटम्स है, सो दिस बिकम्स पेंटेन। ठीक है, सो प्लीज गो थ्रू दीज एग्जाम्पल्स, एंड एक बार ये एग्जाम्पल्स आपके हो जाते हैं तो जो टेक्स्ट बुक में और एग्जाम्पल्स है, गिव देम द ट्राई। ठीक है, सो यहाँ पे आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू डू IUPAC नेमिंग। आपको थोड़ा भी डाउट हो तो ये सेक्शन को वापस रिवाइंड करके आप और एक बार देख लो। फाइन, सो हमारा IUPAC नेमिंग खत्म हो चुका है, मेटामरिज्म क्या होता है वो खत्म हो चुका है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन से। Methods of preparation. Now this is very very important. Okay. यहाँ पे 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, टोटल 3 है, बट 2 जो है वो बहुत बड़े मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है। सो एक एक मेथड को देखना स्टार्ट करते हैं। सो पहली जो मेथड है उसको कहा जाता है कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन। कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन, ओके। Now, normally this method is used to prepare symmetrical or simple ethers. Now let's take an example. Okay, so अगर जो आपको डाई इथाइल ईथर बनाना हो तो आपका स्टार्टिंग कंपाउंड जो होगा, यहाँ पे हम लोग बेसिकली व्हाट वी डू इज वी यूज 2 molecules of alcohol, ROH plus ROH. ओके, ना इन 2 मॉलिक्यूल्स मिलके हम लोग एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल देता है। सो दिस इज बेसिकली डिहाइड्रेशन। बट डिहाइड्रेशन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर से आप वाटर नहीं निकाल रहे हो, आप 2 मॉलिक्यूल्स मिला के एक H2O मॉलिक्यूल हटा रहे हो, -H2O। सो दिस इज कॉल्ड एज इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। एंड व्हेन यू डू इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन, ये हट जाता है तो व्हाट यू वुड बी लेफ्ट विथ इज ROR। नाउ टू कैरी आउट दिस रिएक्शन 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ओके, एंड सेकेंड थिंग इज टेम्परेचर। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, 413 केल्विन्स होना चाहिए, ओके। आपको आपका टेम्परेचर 413 केल्विन्स जो है वो उतना ही रखना है, ओके। आप ज्यादा रखोगे तो अल्कोहल जो है वो अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इफ यू हैव कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड 443 केल्विन्स, आपको उस केस में यहां पे जो ईथर मिल रहा है, यू विल नॉट गेट ईथर, यू विल गेट एन अल्कीन। अल्कोहल जो है वो अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस विल बी इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन। एक ही मॉलिक्यूल, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना अल्कोहल को आप अल्कीन में कैसे कन्वर्ट करते हो। सो बेसिकली हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करते हैं, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स को हम लोग अल्कीन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस लीड्स टू इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन, ओके। आई ऑल्सो कॉल दिस एज एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि एक ही कंपाउंड में से, एक ही मॉलिक्यूल में से वाटर जो है वो एलिमिनेट हो जाता है प्लस H2O। सो वाटर कम्स आउट फ्रॉम अ सिंगल मॉलिक्यूल, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। सो इफ यू आप भूल चुके हो तो प्लीज गो थ्रू दैट सेक्शन वंस अगेन, ओके। नाउ ये जो पहला रिएक्शन है जहां पे हम लोग इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन कहते हैं, दिस इज सिमिलर टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वी विल लुक एट द मैकेनिज्म, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है एंड ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, ओके। नीचे वाला एलिमिनेशन रिएक्शन है, ऊपर वाला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सो बेसिकली
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा या एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, ये बस ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो इससे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द टेम्परेचर्स. ओके, ना ये SN2 है, तो SN2 में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है, 1 डिग्री मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री विच इज मोर रिएक्टिव देन 3 डिग्री. इनफैक्ट मैं आपको यही कहूंगा कि ये वाला जो रिएक्शन है, ऊपर वाला रिएक्शन, इट इज ओनली शोन बाय 1 डिग्री अल्कोहल्स, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री नहीं दिखाते. सो 1 डिग्री कैन बी कन्वर्टेड इनटू ईथर, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ईथर. 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अगर जो आपका अल्कोहल हुआ एंड आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज कर रहे हो, इवन दो यू कीप दिस टेम्परेचर, ये टेम्परेचर रखने के बावजूद आपको ये नहीं मिलेगा, आपको ये ही मिलेगा. सो 2 डिग्री एंड 3 डिग्री विल अंडरगो elimination reaction, and if they undergo elimination reaction they will form alkenes. But 1 degree alcohol at these reaction conditions will get converted into ether. 1 degree alcohol ether में convert हो जाएगा. Okay, so let me start off with an example. Let's say you have C2H5OH plus you have C2H5OH, you add concentrated H2SO4, okay, 413 kelvins. Now in this case what happens is यहां से OH बाहर निकलता है, यहां से H बाहर निकलता है, तो H2O comes out and what you get is C2H5O, C2H5, diethyl ether, और इसका IUPAC नेम होता है, हम लोगों ने देखा हुआ है, इथॉक्सी इथेन. ओके, नाउ यू कैन सी दैट ये दोनों 1 डिग्री अल्कोहल्स है, दीज आर बोथ 1 डिग्री अल्कोहल्स. ओके, बट वही अगर जो आप 2 डिग्री अल्कोहल यूज करो, जैसे फॉर एग्जांपल यू स्टार्ट ऑफ विथ CH3 CH CH3 OH. ओके, इसके आप 2 मॉलिक्यूल्स देते हो तो भी उससे फर्क नहीं पड़ता, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड आप अगर जो ये 413 केल्विन ही रखते हो, तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगा. एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब ये अल्फा कार्बन है, इस पे OH होता है, वो निकलता है, और बीटा कार्बन जो होता है इनमें से एक हाइड्रोजन निकलता है. सो व्हाट यू विल नाउ गेट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. तो अगर जब आप स्टार्टिंग में 2 मॉलिक्यूल्स यूज कर रहे हो तो यू विल गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस. दिस इज बेसिकली अल्कीन, राइट? एंड ये जो आपका रिएक्शन है दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, विद 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स दे विल ऑलवेज अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन एंड प्रोड्यूस अल्कीन. 1 डिग्री अल्कोहल एट दीज रिएक्शन कंडीशंस विल गेट कन्वर्टेड इनटू ईथर, एंड ये जो रिएक्शन है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. ओके, नाउ लेट्स सी कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता कैसा है, हाउ डज दिस रिएक्शन टेक प्लेस. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड मैकेनिज्म. ओके, you have CH3 CH2 OH H plus. ओके, सो H प्लस यहाँ पे अटैक करता है. सो व्हाट यू गेट इज, ये स्टेप 1 है, एंड ये H प्लस आता कहाँ से, आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज कर रहे हो ना, तो ये एसिड है, एसिड विल गिव यू H प्लस. H plus will go and attack 1 molecule of alcohol. So what you will get is CH3 CH2 OH2, एंड ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा क्योंकि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है. ओके, अब आता है स्टेप 2, CH3 CH2 OH2, ओके, plus will now bring in second molecule of alcohol. If you see over here, ये रिएक्शन के लिए आपको अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए ना, तो फर्स्ट स्टेप में हमने एक मॉलिक्यूल यूज किया, इसको प्रोटोनेट कर दिया. प्रोटोनेट मतलब यहाँ पे H प्लस ऐड कर दिया,
तो इसको आप कहोगे प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड इथेनॉल। अब ये जो प्रोटोनेटेड इथेनॉल है, अब नाउ यू हैव सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल। अब हमें ये पता है कि ये ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा ना। जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, दिस कार्बन विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज। ना बिकॉज दिस विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज, यहां पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन कैन गो एंड अटैक दिस कार्बन एटम। ओके, तो अब साइमल्टेनियसली क्या होगा, ऑक्सीजन यहां पे अटैक करेगा, तो ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा एंड H2O वुड कम आउट। सो H2O कम्स आउट प्लस व्हाट यू गेट इज CH3 CH2, ये ऑक्सीजन यहां पे ऐड हो जाएगा OH, क्योंकि इस पे H है तो मैंने H नीचे बना दिया है, एंड इस ऑक्सीजन पे CH2 CH3 है, आई एम जस्ट ड्रॉइंग इट ओवर हियर। बिकॉज ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, दिस ऑक्सीजन हैज अ प्लस चार्ज। ओके, नाउ लास्ट स्टेप में लेट्स गो टू स्टेप 3। बिफोर वी गो ऑन टू स्टेप 3, ये स्टेप 2 जो है, दिस इज योर मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप, क्योंकि यहां पे ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का जो ये बॉन्ड है दैट इज गेटिंग ब्रोकन। सो स्टेप 2 बिकम्स योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। एंड इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, एक ये एंड एक ये, सो दैट इज व्हाई इट बिकम्स बाय मॉलिक्यूलर। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2। ओके, एंड ऐसा हमने SN2 मैकेनिज्म में देखा हुआ है ना कि साइमल्टेनियसली बैक साइड अटैक होता है, सो बॉन्ड यहां पे फॉर्म हो रहा है और यहां पे ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, सो दैट इज व्हाई दिस बिकम्स SN2, बिकॉज simultaneously bonds are formed and broken. It is only, मतलब ये एक ही स्टेप में ये दोनों चीजें हो रही है, there would be only one transition state. Okay, now finally step 3 में क्या होता है, step 3 में यहां से ये H plus निकल जाता है, so what you get is, ये H प्लस निकलता कैसा है, सो बेसिकली और एक जो अल्कोहल मॉलिक्यूल है, मतलब कंटेनर में बहुत सारे अल्कोहल मॉलिक्यूल्स होंगे, वो जाके इस H को अटैक करेंगे, तो इस H को अटैक करेंगे तो H प्लस के फॉर्म में बाहर निकलेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो ये ऑक्सीजन पे चले जाएंगे एंड यू विल गेट CH3 CH2O CH2 CH3, दैट इज ईथर। एंड साथ में क्या बनेगा, ये H प्लस निकल कैसे रहा है, अल्कोहल मॉलिक्यूल अटैक कर रहा है ना, लेट मी ड्रॉ इट ओवर हियर, CH3 CH2 OH, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है तो ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन को अटैक करता है, तो साथ में क्या बनता है, साथ में व्हाट यू गेट इज CH3 CH2 OH2 प्लस। ओके, नाउ दिस इज बेसिकली योर प्रोटोनेटेड अल्कोहल ना। अल्कोहल में अब आपने H प्लस ऐड कर दिया तो ये दिस इज सेम एज दिस, या ऐसे ही हो गया, सो ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल हो गया। अब प्रोटोनेटेड अल्कोहल आपको मिलता है तो वापस हमें पता है कि प्रोटोनेटेड अल्कोहल वापस नए अल्कोहल मॉलिक्यूल, नया जो मॉलिक्यूल है वो इसको अटैक करेगा, तो इसके बाद स्टेप 2 रिपीट्स। नाउ ये जैसे ही हो जाता है, देयरफॉर स्टेप 2 रिपीट्स। सो स्टेप 2 के बाद स्टेप 3 आएगा, स्टेप 3 के बाद स्टेप 2 आएगा, इसलिए इसको कहा जाता है कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मैकेनिज्म इज इंपॉर्टेंट, दिस स्टेप इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, एंड इसलिए SN2 मैकेनिज्म कहा जाता है। ये बाय मॉलिक्यूलर है क्योंकि इस स्टेप में दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, इसलिए। ठीक है, फाइन, सॉरी। Okay. Now question is, can we prepare mixed ethers from this? Okay, तो अब वो देखते हैं। Okay, now mixed ether prepare करने से पहले एक बार बस ये देखते हैं, if you look at this reaction, तो यहाँ पे ये जो दो अल्काइल ग्रुप्स आ रहे हैं,
ये दोनों अल्कोहल मॉलिक्यूल से ही आ रहा है। तो आप अगर जो सेम अल्कोहल मॉलिक्यूल देते हो तो आपको दो सेम ग्रुप्स आता है। तो अगर जो मान लो मैं आपको कहता हूं कि अब मुझे CH3OC2H5 ये मिक्स्ड ईथर चाहिए, तो व्हाट कैन वी डू? तो आप ये बोलोगे ना कि दो अलग अल्कोहल्स यूज करो, CH3OH प्लस C2H5OH and concentrated H2SO4 and 413 kelvins. We should do this. ना यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? एक कंपाउंड तो ये मिल ही जाएगा, दिस इज व्हाट यू वुड गेट, दैट इज फाइन। बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं होता ना कि कंटेनर में आपने बस इसका एक मॉलिक्यूल दिया और इसका एक मॉलिक्यूल दिया है। इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होता है एंड इसके भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होता है। तो जैसे ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, देयर इज अ चांस कि इसके दो मॉलिक्यूल्स अपने आप में रिएक्ट कर जाएंगे एंड ऐसा होगा तो व्हाट यू वुड गेट इज CH3OH plus CH3OH. They will also react with each other and form CH3OCH3. That is dimethyl ether. And at the same time C2H5OH के भी दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाएंगे एंड यू माइट गेट, अगर जो ऐसे होता है तो व्हाट यू विल गेट इज C2H5O C2H5, so diethyl ether. So you will get mixture of products in this case, of products. ठीक है, ये आया समझ में? आपको याद है हम लोगों ने ऐसा वर्ड सिंथेसिस में भी देखा था। वर्ड सिंथेसिस सिमेट्रिकल अल्केन्स बनाने के काम आता है, बट आप अनसिमेट्रिकल अल्केन बनाने जाओगे तो यू विल गेट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। वैसे ही यहां पे भी ये मेथड सिमेट्रिकल ईथर्स बनाने के काम आती है। आप अगर जो अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने जाओगे तो ये तो बन जाएगा, बट साथ में ये दो रिएक्शंस होंगे एंड बिकॉज ये दो रिएक्शंस होंगे यू विल गेट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। सो देयरफॉर व्हाट वी से इज दिस मेथड इज नॉट यूजफुल to prepare unsymmetrical ethers. ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में व्हाट वी विल डू इज वी विल लुक एट 2 more methods of preparation of ethers एंड उसके बाद फाइनल सेक्शन आएगा इस चैप्टर का, दैट इज वी विल स्टार्ट ऑफ विथ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ethers. ठीक है, थैंक यू, वी विल स्टॉप ओवर हियर.